errors in measurements. What do you mean by error? अगर हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसको एक्यूरेटली मेजर करें. तो व्हाट इज़ एरर? एरर इज़ ट्रू वैल्यू माइनस measured value. This is the definition of error. What is true value? अब किसी चीज़ को मेजर करेंगे तो मेजर तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद ट्रू वैल्यू आएगी. तो ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू इज एवरेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ measurements using high quality equipments and experienced by experienced persons. This is true value. Types of error. There are three types of error. First is systematic error. सिस्टमेटिक एरर का क्या है? सिस्टमेटिक एरर में हमारे पास काज जो है वो नोन है, मिनिमाइज किए जा सकते हैं. हमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना नहीं आता, उसको सीख करके टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है किसी मेजरमेंट के ऊपर, उसको मिनिमाइज करके. तो सिस्टमेटिक एरर में काज नोन होता है और ये क्या किए जा सकते हैं? मिनिमाइज किए जा सकते हैं. सेकंड, रैंडम एरर. cause is not known. cause known नहीं है. So how they can be minimized? They can be minimized by taking large number of observations and averaging the observations. Let we measure a physical quantity 100 times and error is found to be X. Now, if we measure it 1000 times, error will reduce to X by 10 because observations are made 10 times. तो error is reduced 10 times. यानी if observations are increased n times,
then error is reduced to 1 by n times. Next, third type of error is gross error. This is due to carelessness. This is due to carelessness. By measuring carefully, taking care of parallax, etc., it can be reduced. Now, absolute error. It is modulus meaning magnitude of difference between true value and measured value. If A1, A2, A3, so on, An are the measured values, then true value is A is A1 plus A2 plus so on plus An divided by n. Absolute error in first measured value delta A1 magnitude is equal to A minus A1. Absolute error in second measured value delta A2 is equal to A minus A2. Absolute error in nth measured value delta An is equal to A minus An magnitude. Mean absolute error. Mean absolute error. It is the mean of absolute errors. Delta A bar is equal to delta A1 plus delta A2 plus so on plus delta An divided by n.
fractional error. Fractional error. It is mean absolute error divided by true value. Delta A bar upon A. Percentage error, that is fractional error multiplied by 100. Fractional error multiplied by 100 means delta A bar upon A multiplied by 100. These are the definitions of mean absolute error, fractional error, percentage error. Now, how the errors propagate? Propagation of errors. Simply I will write the formulas. मान लीजिएगा हमें किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर मेजर करना है तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करना होगा, तो एडिशन हो गया। मान लीजिएगा हमें किसी चीज़ का एरिया मेजर करना है तो लेंथ का और ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो हमारे पास अलजेब्रा में डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। हाउ एरर प्रोपेगेट्स इन दोज फिजिकल क्वांटिटीज़, क्योंकि कोई ऐसा पॉसिबल है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें डायरेक्ट मेजर ना हो, जैसे किसी सब्सटेंस की डेंसिटी हमें मेजर करनी है तो वो डायरेक्ट मेजर नहीं हो सकती। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें पहले मास मेजर करना पड़ेगा, फिर वॉल्यूम मेजर करना पड़ेगा। अब कुछ तो हम क्या करेंगे, मास मेजर करने में एरर कर देंगे, कुछ हम वॉल्यूम मेजर करने में एरर कर देंगे। तो डेंसिटी में कितना एरर हुआ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो किस तरह से एरर में प्रोपेगेशन होता है डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, when physical quantity involves sum। मान लीजिएगा हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम x लिख रहे हैं, वो कैसे आती है? दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने में आती है, एक A दूसरा B। अब मैक्सिमम एरर इन x किसके बराबर आएगा? दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B। दोनों में एरर मान लो हमारे पास ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 8 सेंटीमीटर। हमने बाय मिस्टेक लेंथ को तो 10.1 सेंटीमीटर रीड कर दिया और ब्रेड्थ को 8.1 सेंटीमीटर रीड कर दिया। तो हमारे पास L प्लस बी किसके बराबर हो गया? L प्लस बी हो गया हमारे पास 18.2 सेंटीमीटर। मेजर कितना होना चाहिए था? 18 सेंटीमीटर। तो कितना एरर आ गया? 0.2 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर हमने इसमें एरर कर दिया, 0.1 सेंटीमीटर हमने इसमें एरर कर दिया। तो ये दोनों हमारे पास 18.2 सेंटीमीटर ऐड होकर के आ गए। तो एरर कितना हो गया? एरर इन A प्लस एरर इन B। When physical quantity involves difference
x इज इक्वल टू a माइनस बी। यहां पर भी एरर, मैक्सिमम एरर जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो एक बात हमेशा आप याद रखो कि मैक्सिमम एरर्स कभी भी माइनस नहीं होते। डेल्टा एक्स जब मुझे निकालना पड़ेगा तो वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही होगा, एडिशन ही आएगा। डेल्टा एक्स अगर मैक्सिमम निकालना है तो, नहीं तो एरर आपका रेंज हो सकता है एरर हमारा ना ही आए, पर अगर हमारे को मैक्सिमम एरर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए में जो एरर आया है उसको और बी में एरर आया है उसको ऐड करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये लेंथ मेरी 10 सेंटीमीटर है और ये लेंथ मेरी 8 सेंटीमीटर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ? भाई सीधी सीधी बात आ गई, L माइनस बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बट व्हाट इज एरर इन मेजरमेंट? बाय मिस्टेक L is equal to 10.1 सेंटीमीटर एंड B is equal to 7.9 सेंटीमीटर। अब डेल्टा L किसके बराबर हो गया? 0.1 सेंटीमीटर के बराबर। डेल्टा B भी किसके बराबर हो गया? 0.1 सेंटीमीटर। तो अब डिफरेंस किसके बराबर आया? डिफरेंस किसके बराबर आया? L माइनस बी कितना हो गया? L माइनस बी हो गया 2.2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एरर इन मेजरमेंट ऑफ डिफरेंस किसके बराबर आएगा? 0.2 सेंटीमीटर के बराबर आएगा, यानी डेल्टा L प्लस डेल्टा बी। यानी हमें हमेशा क्या करना है, हमें एरर जब भी कैलकुलेट करेंगे ऐड करके चलेंगे। नेक्स्ट, थर्ड, व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स मल्टीप्लिकेशन। x इज इक्वल टू ए बी। यहां पर बेटा डायरेक्ट हम डेल्टा x डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। वी हैव टू कैलकुलेट फ्रैक्शनल एरर। हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? एडिशन ही होगा। एरर हमेशा ऐड होते हैं, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे कुछ भी हो। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो व्हेन फिजिकल क्वांटिटी involves multiplication, relative error is sum of relative errors involved in physical quantity. Fourth, when physical
quantity involves पावर। जब फिजिकल क्वांटिटी क्या इन्वॉल्व करती है, पावर इन्वॉल्व करती है, तो ये तो पावर तो कुछ है ही नहीं। पावर a रेज टू द पावर n का क्या मतलब है? x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a, कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो डेल्टा x किसके अपॉन x किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a प्लस सोन, कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो क्या हो गया हमारे पास? डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू n डेल्टा a अपॉन a। Next, when physical quantity involves division, x is equal to a by b। तो यहां भी बेटे हमारे पास रिलेटिव एरर डेल्टा x अपॉन x जो आएगा वो डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b आएगा। ऐड करना है। एक हम रैंडम सी चीज लेकर के चल लेते हैं, और वो रैंडम सी चीज क्या है कि मान लेते हैं कि हमारे पास x जो है a के पावर l b के पावर m डिवाइडेड बाई c के पावर n है। तो डेल्टा x किसके बराबर होगा? डेल्टा x अपॉन x कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा डेल्टा x अपॉन x? दैट विल बी इक्वल टू पावर l डेल्टा a अपॉन a प्लस l कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। a की पावर n का कितना था? n डेल्टा a अपॉन a। और फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? ऐड हो गया। फिर पावर m मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा b अपॉन b प्लस, अब बेशक डिवाइड हो रहा होगा ऐड ही। क्या समझ में आया? बेशक डिवाइड हो रहा हो, करना क्या है? ऐड ही करना है। तो ये किसके बराबर होगा? n डेल्टा c अपॉन c। तो ऐसे हमें करना है। एक्यूरेसी and precession। Accuracy, how close to true value। आप जितना ट्रू वैल्यू के नजदीक होंगे उतने ज्यादा एक्यूरेट होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीसेशन? प्रीसेशन का क्या मीनिंग है? प्रीसेशन मान लो आपके पास कोई सब्सटेंस है, इसको वेट करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? वेट करने के लिए मान लो आपके पास 1 kg के ब्लॉक्स हैं। तो या तो आप इसको 5 kg मेजर करोगे या फिर आप इसको 6 kg मेजर करोगे। अगर 5 kg से ज़्यादा है तो या तो आप इसको 5 kg मेजर करोगे या फिर आपको 6 kg मेजर करोगे। अब आप क्या करते हो? आपके पास 100 ग्राम के बाट और है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप इसमें मान लो 5 + 200 ग्राम हो गया, तो क्या मेजर कर दोगे?
5.2 kg। अब ये क्या मतलब हो गया, ये आपके पास ट्रू वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक चला गया। ये क्या हो गया आपके पास, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें ज़्यादा हो गए। मोर द सिग्निफिकेंट फिगर इन मेजर्ड वैल्यू मोर द प्रेसाइज। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर मेजर्ड वैल्यू में होंगे उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, प्रेसाइज होगा। ठीक है, कोई आपके पास मेजरमेंट मोर एक्यूरेट मोर प्रेसाइज पॉसिबल है, मोर एक्यूरेट लेस प्रेसाइज पॉसिबल है, लेस एक्यूरेट मोर प्रेसाइज ये भी पॉसिबल है, लेस एक्यूरेट लेस प्रेसाइज ये भी पॉसिबल है। सारी चीजें पॉसिबल है आपके पास, मोर एक्यूरेट मोर प्रेसाइज, मोर एक्यूरेट लेस प्रेसाइज, लेस एक्यूरेट मोर प्रेसाइज, लेस एक्यूरेट लेस प्रेसाइज। significant figures I will not confuse you, do it from chemistry as taught by शशिकांत सर। सिग्निफिकेंट फिगर्स केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी सिंपल चीज़ें हैं, वो आप वहीं से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।